پر آپ کو آگاہ کیا وزیر اعظم کی آمد ہو چکی ہے ننکانہ صاحب؟ باعث قدر ہے اور میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم نے وہ بہت فارمل یہاں پہ انتظامات نہیں کیے جس طرح سے کہ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ منصوبے بن رہے ہیں، آج میں اس کی انسپیکشن کے لیے آیا ہوں اور اس کی انسپیکشن بہت ضروری تھی تاکہ میں اس کی سپیڈ کو دیکھ سکوں، اس کام کے بارے میں پوچھ سکوں کہ کوالٹی کیسی ہے، رفتار کیسی ہے اور کام ٹھیک چل رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ وقت مقررہ پہ مکمل ہو جائے گا یہ منصوبہ۔ تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں چیئرمین نیشنل ہائی وے کمیشن اتھارٹی تارڑ صاحب کا اور اسی طرح سے میں ان کی ٹیم ممبرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بڑے پرعزم ہیں۔ انہوں نے صرف اس منصوبے کے بارے میں نہیں بتایا، انہوں نے باقی منصوبوں کے بارے میں بھی بتایا جو کہ ملک میں چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی یہاں پاکستان کے اندر بلوچستان میں اور پھر KPK میں اور پھر پنجاب میں منصوبے پہ منصوبہ ماشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ میں معاف کیجئے بھول گیا گلگت بلتستان میں اور ابھی آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ بڑے منصوبے شروع ہونے والے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو تعمیر ہو رہی ہے وہ اس انداز میں ہو رہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی اگلے چند سالوں میں نہ صرف اس خطے کی بلکہ اس پورے ریجن کی انشاءاللہ ایک مضبوط معیشت اور مضبوط طاقت بن جائے گا، جس کو میں ایشین ٹائیگر کہتا ہوں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایشین ٹائیگر بننے والا ایجنڈا ہے۔ صرف یہ منصوبے جو ابھی انہوں نے مختصراً بتائیں، ٹائم چونکہ یہ زیادہ نہیں لینا چاہتے تھے، انہوں نے کم ابھی مین منصوبے بتائے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا جو خنجراب سے لے کے یہ مانسیرا کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ منصوبہ جو خنجراب سے براستہ مانسیرا گوادر تک جائے گا، اور پھر ہم اپنے ملک تک محدود نہیں اس سارا سلسلہ رکھ رہے، ہم اس کو اپنے ملک سے اپنی سرحدوں سے باہر بھی لے جا رہے ہیں۔ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اپنے ملک کے اندر تو پہلے انفراسٹرکچر صحیح ہونا چاہیے نا۔ کسی اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر جانے سے پہلے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ صحیح اپنا آپ کا انفراسٹرکچر، روڈز، ہائی ویز، موٹر ویز بننی چاہیے۔ میں چائنا ریلوے، کہاں ہے چائنا ریلوے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں ZKB کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ماشاءاللہ بڑی تندہی سے اس منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہے، آپس میں کمپٹیشن ہے، جو بڑی اچھی بات ہے۔ اور مجھے چیئرمین صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ماشاءاللہ چائنا ریلوے کے ساتھ ساتھ ZKB کی بھی کوالٹی بہت بہتر ہے اور سپیڈ بھی بہت اچھی ہے۔ ہمیں سپیڈ بھی چاہیے اور کوالٹی بھی اچھی چاہیے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو ایک نو ہاؤ مل رہی ہے، ایک ٹیکنالوجی، نئی ٹیکنالوجی سے وہ آگاہ ہو رہے ہیں، ایک اپنا ان کو اپنا یہاں پہ موقع مل رہا ہے کہ وہ آئندہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کی موٹر ویز اور ہائی ویز
از खुद भी इंशाअल्लाह बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त मैं जो चेयरमैन भी जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर मुल्क के अंदर सड़कें, मोटरवेज़ और फिर हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ जो बन रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक इतने बड़े पैमाने पे नहीं बनाए। और तकरीबन और आप देखें कहाँ गवादर है, कहाँ खुंजराब है। 2600 किलोमीटर लंबी हाईवे बन रही है। 2600 खुंजराब और गवादर से इंशाल्लाह जब हम बना लेंगे तो हम चीन से बराह रास्त गवादर आ सकते हैं। सेंट्रल एशिया से बराह रास्त हम गवादर आ सकते हैं। सेंट्रल एशिया लैंड लॉक्ड है, उनके पास समुंदर नहीं है कोई। उनको समुंदर की जो फैसिलिटी मिलेगी वो गवादर से मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बड़ी फैसिलिटी है ये कि गवादर के ज़रिए से अपनी वो इंपोर्ट्स कर सकेंगे, एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे। उनकी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और ये बहुत बड़े मंसूबे हैं इसके साथ। और मैं दावत देता हूँ ऑपोजिशन को, आए देखें इस ज़ेरे तामीर मोटरवे की तरह सैर करें, बजाय के रोज़ आए देखें, आए देखें, आके देखें ये क्या इनकलाब आ रहा है। ये किसी इनकलाब से कम नहीं है। 6 सड़कें जा रही हैं, 6, एक नहीं 6, 3 जा रही हैं, 3 आ रही हैं। कम से कम किसी अच्छी बात की दाद तो दे दें। उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से कम हमें बनाने दें। ये सिर्फ ये काम नहीं हो रहा, बिजली के बेहिसाब कारखाने लग रहे हैं और जगह जगह अल्लाह के फजलो करम से जो है मंसूबे तामीर हो रहे हैं जिनसे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बिजली जो है वो बहाल होगी। वो तो बिजली को ख़त्म करके चले गए, हम दोबारा बिजली वापस ला रहे हैं। वो साथ ही ले गए बिजली अपने और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको वापस लेके आ रहे हैं। और फिर महंगी बिजली नहीं, सस्ती बिजली लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजलो करम से बिजली बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है। इसी इलाके के करीब वो मंसूबे लग रहे हैं जो बिजली बना रहे हैं। और हम करीब इंशाअल्लाह अभी बल्लो की और जो है वो हवेली बहादुर शाह जाके उसका इफ्तिताह करेंगे, कादराबाद जाके उसका इंशाअल्लाह इफ्तिताह करेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से ये बिजली आएगी, पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है, अभी चेयरमैन NHA ने मुझे बताया जी कि तकरीबन 50,000 बंदे इस मंसूबे पे काम कर रहे हैं। और फिर और इस तरह के कई मंसूबे चल रहे हैं। अगर 50,000 बंदे ऐसे मंसूबे पे काम कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लाख बंदे जो हैं वो सब मंसूबों पे काम कर रहे हैं। और फिर जो बिजली के कारखानों की बात की है उसमें भी लाखों लोग काम कर रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान तामीर हो रहा है, भाई होने दो, इसमें रुकावट मत डालो। ये इन गरीबों का फ़ायदा है, नौजवानों का फ़ायदा है जो ये हुकूमत करने जा रही है अल्लाह के फजल से। इनके घरों में खुशहाली आएगी, इनके घरों में खुशहाली आएगी जब ये मुकम्मल होंगे मंसूबे इंशाअल्लाह। क्या तुम रुकावट क्यों डाल रहे हो ताकि इनके घरों में खुशहाली दस्तक ना दे? ये लोग बेचारे गुर्बत का शिकार रहे, इनके घरों में जो है वो कोई अपना सामान
या रोशनी नहीं आनी चाहिए, इनके बच्चे स्कूलों में ना जाएं, इनको हस्पतालों की फैसिलिटीज़ ना हासिल हों। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है, जुल्म है गरीब आवाम के साथ। एक हुकूमत है भाई, आवाम का मैंडेट लेके आई है, उसको पूरा हक है कि वो आवाम की खिदमत करे, और हम उस मिशन पे अल्लाह के फजल करम से रवां दवां हैं। हम इनसे नहीं घबराते, और ना कभी पहले कभी घबराए हैं, और ना इंशाअल्लाह ना आइंदा घबराएंगे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से ये इस मिशन को जारी रखेंगे। अगर उन्होंने जारी रखना अपना मिशन, वो अपने मिशन को जारी रखें। इंशाअल्लाह लोगों ने अब उस तरफ देखना बंद कर दिया है, लोग इधर देख रहे हैं, इधर कि इधर क्या हो, पाकिस्तान की तामीर की तरफ देख रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान तामीर हो रहा है। इन्होंने बताया चेयरमैन साहब ने और मेंबर हाईवे ने कि ये मंसूबे 10-10 साल मुकम्मल नहीं होते थे, 2-2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। ये हमारी रवायत है कि 20-20 साल 10-10 साल इस तरह के मंसूबे मुकम्मल नहीं होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 साल में मोटरवेज बन रहे हैं भाई। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, ये एक इनकलाबी इक़दाम है जो हो रहा है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की रवायात से बरअक्स है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बताओ मुझे कि 2 साल में कभी ये जो यहाँ पर शेखपुरा लाहौर की भी कभी कोई सड़क बनी है, वो भी कई साल ले गई, और जो बनती है मुकम्मल होने से पहले फिर टूटती है। कितने अफसोस की बात है भाई, टूट जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अभी इस लाहौर इस्लामाबाद की मोटरवे को हमने दोबारा बनाया है। ये टूट फूट का शिकार हो रही थी हमारे आने से पहले, आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसकी आखिरी जो लेन थी उसमें बिल्कुल वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायरों के निशान बन गए थे, तो उस पर क्या गाड़ियाँ चलेंगी। और अगर खुदा न खास्ता इसको हम ना आके दोबारा तामीर करते, ये और 2-4 साल में टूट फूट जाती। क्योंकि हमारी रवायत ये है, हमने अपने अहसासों का कभी ख्याल नहीं किया। और ये मोटरवे लाहौर, सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ये कोई 25 अरब रुपए में बनी थी, 25 अरब रुपए में। आज इसकी आपको अंदाज़ा है कि क्या वैल्यू है इसकी? आज क्या ये असासा कितने का है? 500 अरब रुपए का। क्यों चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब मुझे अभी रास्ते में बता रहे थे कि जी अब माशाल्लाह ये असासा 500 अरब रुपए का हो गया है। कहाँ 25 अरब, कहाँ 500 अरब। ये पाकिस्तान के असासे हैं, ये आज बन रहे हैं, ये बड़े कीमती हैं असासे। इनकी तकदीर से मत खेलो, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। ये बढ़ रहा है। मुझे बताएं ज़रा, पिछले 15-20 सालों में, ज़रा आप पिछले 5 साल, उससे पहले 10 साल या 7 साल या उससे पहले वाले साल, 1999 से लेके आज तक, ये 2013 तक क्या तरक्की हुई है पाकिस्तान में भाई? ज़रा बताओ तो सही। कोई बड़ा मंसूबा बना, किसी मोटरवे का नाम ले लो, बना। किसी बिजली के बड़े प्रोजेक्ट का नाम ले लो, बना। बल्कि दहशत गर्दी थी यहाँ इस मुल्क के अंदर। भाई बोलो, थी या नहीं थी? दहशत गर्दी का आलम इतना, यानी कि आम थी दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर। अल्लाह ताला का कितना करम और कितना फजल है, हमने ऑपरेशन शुरू किया उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा है। पाकिस्तान में लोग सुकून का माशाल्लाह सांस लेना शुरू हो गए हैं। कराची के हालात देखें, कराची आज माशाल्लाह, कराची भी उसकी रौनकें बहाल हो रही हैं अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान की इकॉनमी टर्न अराउंड कर रही है। अल्लाह का बड़ा शुक्र करम, आप शुक्र अदा करें। ये धरने किस लिए हैं? क्यों? क्या मकसद इन धरनों का? पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है?
इन गरीबों की तकदीर से खेलना है, पाकिस्तान को फिर पिछली सदियों में लेके जाना है। बड़ी मुश्किल से ये मुल्क कब आगे चलना शुरू हुआ है। माशाल्लाह लोग इसकी इकॉनमी की तारीफ़ कर रहे हैं, दुनिया माशाल्लाह तारीफ़ कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो गया है, बलूचिस्तान के हालात बदल रहे हैं। ज़रा सोचें 2011 में, 10 में, 9 में, 2007 में, 2005 में, उससे पहले, उसके बाद 2013 तक बलूचिस्तान में क्या हशर हो रहा था। आज बलूचिस्तान माशाल्लाह खुशहाली की जानिब रवा दवा है। इसी तरह से आप अपना मुल्क के बाकी हिस्सों का भी आप देख लीजिए। तो ये जो काम है अल्लाह के फजलो करम से वो अब मुंह बोलता है और नज़र आता है। आज पाकिस्तान के अंदर तरक्की के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। यार इनसे रोज़गार मत छीनो, सियासत करो उस हद तक करो कि इन गरीबों से निवाला इनके मुंह से मत छीनो। बड़ी उम्मीदें लगाई हैं आजकल के नौजवानों ने, उनका मुस्तकबिल अगर रोशन होता उनको दिखाई दे रहा है तो इसको रोशन होने दो। बहुत अच्छे अच्छे मंसूबे माशाल्लाह चल रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब को, उनकी टीम मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ZKB को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ज़रा आप उठें, ज़रा थोड़ा सा इनको अपना चेहरा दर्शन करवाएं। आप बड़े नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये मोटरवे बना रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हैं और तेज़ी के साथ इसकी तकमील कर रहे हैं। एक ये चाइना रेलवे के ये भी माशाल्लाह मोटरवे बना रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत उम्दा इन्होंने ये काम किया है और इस तरह के अभी देखें, सिर्फ भाई अभी इन्होंने बताया है ये इंशाल्लाह अभी लाहौर से अभी ये रुक गई थी यहाँ पे मोटरवे। 1999 में ये मोटरवे लाहौर में रुक गई थी, अब आगे चलना शुरू हुई है। लाहौर से अब ये मुल्तान जा रही है और मुल्तान से इंशाल्लाह ये सक्खर जा रही है। तामीर है, वो भी ज़ेरे तामीर है। मुल्तान से सक्खर, सक्खर से हैदराबाद इंशाल्लाह जल्दी उसकी तामीर शुरू होगी और हैदराबाद कराची इस साल अगस्त में मुकम्मल हो जाएगी। आप फ़ख्र के साथ माशाल्लाह ये कह सकेंगे कि हाँ, हमारे मुल्क में माशाल्लाह पेशावर से लेके कराची तक 6 रोया मोटरवे है, 6 रोया। भाई इस खित्ते में कहीं नहीं है, ये साउथ एशिया में कहीं नहीं है। नहीं बात सुने, कहीं नहीं है साउथ एशिया में, आपके हमसाए मुल्कों में कहीं नहीं है, इस खित्ते में नहीं है। अल्लाह ने आप पे बड़ा एहसान किया जो आपके पास ये माशाल्लाह असासे मौजूद हैं और बन रहे हैं। ये अल्लाह ने पाकिस्तान पे बहुत रहम किया और अगर पाकिस्तान पे अल्लाह रहम कर रहा है तो भाई उसमें रखना मत डालो। वैसे भी यार अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह के कामों में कोई रखना डाल भी नहीं सकता। अगर कोई डालने की कोशिश करता है तो ख़त्म हो जाता है। ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ने दोबारा अपने नज़र करम इस मुल्क पे की है और ये मुल्क माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। ननकाना साहब में हम खड़े हैं यहाँ ननकाना साहब के इलाके में और ज़िला शेखुपुरा है ये, तो हम यहाँ सब जमा हैं। मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ से मोटरवे गुज़र रही है ये वहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े खुश होंगे और होना भी चाहिए। इससे काश्तकारों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, बेहिसाब फ़ायदा पहुँचेगा। उनकी जो है ना जो प्रोड्यूस जो है वो पाकिस्तान से गैर मुल्की मंडियों तक जाएगी और घंटों में पहुंचेगी। अब कोई तसव्वुर तो करे भाई ज़रा, कोई ननकाने वाला बंदा जो है, ननकाना साहब का बंदा जो है वो
اگر یہاں سے بائی روڈ کراچی جانا چاہے تو کتنی دیر میں پہنچے گا؟ غالباً 2 دن لگ جائیں گے اس کو جاتے ہوئے. لیکن انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ننکانہ صاحب کا رہنے والا جو ہے اگر وہ کراچی جائے گا تو 8 گھنٹوں کے اندر 10 گھنٹوں میں کراچی پہنچ جائے گا. کتنی بڑی تبدیلی ہے. اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیا پاکستان. یہ ہے 21ویں صدی کا پاکستان. اور بڑی مہربانی. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بس میں آج یہ سب کچھ دیکھنے آیا تھا. پھر دوبارہ آؤں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں پیچھا چیئرمین صاحب کا جب تک کہ میں مکمل نہ کروا لوں یہ منصوبہ انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل سے یہ تحفہ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو. اور یہاں پہ جو کون سا کوئی پل بن رہا ہے یہاں پہ سید والا پل بھی جلدی مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ. وہ بھی NHA بنا رہا ہے انشاءاللہ. اس کا بھی اگر مجھے موقع ملے تو میں انشاءاللہ اس کا آ کے شجرا کے ساتھ میں افتتاح کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم نواز شریف آج ننکانہ صاحب پہنچے اور M3 موٹر وے پر کام کے جائزے کے موقع پر وہ گفتگو کر رہے تھے. NHA حکام نے ان وزیر اعظم کو بریفنگ دی جس کے بعد وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر طرف منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں اور اس منصوبے میں کام کی جو روانی تھی اس سے میں خوش ہوا جو کام کرنے والی جو پوری ٹیم ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں. M3 موٹر وے پہ کام کرنے والی ٹیم کو انہوں نے سلام پیش کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سالوں میں پاکستان خطے کی مضبوط طاقت بن جائے گا. ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لینے آیا ہوں. پاکستان چند سالوں میں خطے کی مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا. پاکستان انشاءاللہ ایشین ٹائیگر بنے گا.